دیکھیں آپ اس درود پاک کی فضیلت آپ سمجھے. اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم پر 5 چیزیں فرض فرمائی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، کلمہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دشنے کے بعد وہ مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کب کفری جملے استعمال کر جائے، اس کا ایمان چلا جائے. بندے نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد فرائض کی طرف جب آیا، اب نماز فرض ہے اس کے اوپر. نماز پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے، ابھی مسجد کی طرف جا رہا تھا، گھر سے ابھی نکلا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی لگایا، گھر کے باہر آیا. آنے کے بعد اس نے مسجد کی جانب اپنے قدم کو بڑھایا. لوگوں نے پوچھ لیا، او میاں ٹوپی لگا کر کے کہاں جا رہے ہو؟ بندے نے مسکرا کر کے جواب دیا، بندے نے بڑے شوق سے جواب دیا، میاں میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی بندہ مسجد پہنچا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا نہیں ہے. جھکانے سے پہلے اس نے لوگوں کو بتلا دیا، میں رب کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ اللہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی نماز کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہو یا نہ قبول ہو. آئے اور آگے چلے. بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے چند غریبوں کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد جب وہ اپنا مال دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 4 کیمرے والے کو بلا لیتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے یہ مالدار ہے، غریبوں کو دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے. ابھی اس نے غریبوں کو پیسہ نہیں دیا ہے، 4 کیمرے والے پہلے آ گئے ہیں، کیمرے والے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ دنیا جان جائے. اب اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے. آئے اور آگے دیکھیں. بندہ ہے حج کے لیے جاتا ہے، حج جانے سے پہلے ہی اس کا بیٹا ہو یا بھائی، ماں ہے یا رشتہ دار کوئی بھی ہو، اس کے حج جانے سے پہلے ہی اسٹیٹس لگنے لگ جاتا ہے، میرا باپ حج کو جا رہا ہے، میرا بھائی حج کو جا رہا ہے، میری ماں حج کو جا رہی ہے. ابھی یہ حج کے لیے گیا نہیں ہے، مکہ پہنچا نہیں ہے. پہنچنے سے پہلے لوگوں میں افراتفری ہے، فلاں انسان حج کے لیے جا رہا ہے، یہ لوگوں سے ملتا ہے تو الحمدللہ کی صدائیں لگاتا ہے، کہتا ہے رب کا بلاوا آیا. ابھی یہ مکہ پہنچا نہیں ہے، لوگوں میں بتلانا شروع کر دیا. اب اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عبادت اس کے قبول ہو یا نہ ہو. مگر آؤ تمہیں بتاؤں، درود پاک وہ ہے، رب فرماتا ہے اگر بندہ میرے محبوب پر دکھاوے کے لیے درود پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے درود کو قبول. اگر بندہ دکھاوے کے لیے مصطفیٰ پر درود پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے درود کو قبول فرما لیتا ہے. اب ذرا اپنے ہونٹوں کو ہلا کر کے مصطفیٰ کی طرف، جتنا عشق آپ کو مصطفیٰ سے ہے اتنی عشق کر کے حضور کی جانب لو لگا کر کے پڑھے درود پاک. اللہ نوازی کرتا ہے. پھر اس کے بعد لڑکی پسند آئی، اب شادی کی تقریب، شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے اس میں بھی 2 گاڑیاں آتی ہے. اس کے بعد یارو ذرا غور و فکر کیا کرو، تم بھی باپ بیٹی والے ہو، تم بھی کسی بیٹی کے باپ ہو، تم بھی کسی لڑکے کے باپ ہو. یارو ذرا کبھی غور کیا کرو. آج تم کسی کی بچی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو 10-20 آدمی اکٹھا ہو کر کے جاتے ہو، اس کے اخراجات کو بڑھاتے ہو. پھر اس کے بعد ہمارا معاشرہ بھی عجیب ہو گیا ہے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، بندہ لڑکی پسند کر لیتا ہے، شادی کی تقریب رکھی جاتی ہے، اب اس کی مانگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، لمبی لمبی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتا ہے. آنچا پانچی اسے چاہیے، پھٹ پھٹیا اسے چاہیے، 4 ویلر اسے چاہیے. اب یہ بندہ لڑکی کے باپ کو اس طرح سے ستاتا ہے. ایک باپ کو لڑکی کے ہونے کے ناطے، لڑکی کے باپ کا ہونے کے ناطے اس طرح سے اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اگر یہ بلٹ نہ دے تو لڑکی اس کے گھر پر بیٹھی رہ جائے، اگر یہ 4 ویلر نہ دے تو اس
लड़की इसके घर पर बैठी रह जाए, आचा पाची ना दे तो लड़की इसके घर पर बैठी रह जाए। यारो जरा गौर किया करो, जिस लड़की की शादी होती है उसके हाथ की रेड मेहंदी तो छूट जाती है, मगर बाप के सर से कर्ज का बोझ नहीं छूटता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा कभी गौर व फिक्र किया करो यारो, तुम तो बड़ी आसानी के साथ डिमांड किया करते हो, जरा सोचा करो, अपने जहन को करीब करो। आओ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एक बाप है अपनी बेटी की शादी अब तुम्हारे बेटे के हाथ में दे रहा है, अपनी बेटी का हाथ उस बेटी को दे रहा है। जिस दिन से वो पैदा हुई है उसके खाने का इंतजाम वो कर रहा है, जिस दिन से वो दुनिया में आई है उसके कपड़े का इंतजाम वो कर रहा है, जिस दिन से वो बड़ी हुई है अब बाप की नींदें उड़ी जा रही है, जिस दिन से वो शादी के करीब पहुंची है बाप का जीना दुश्वार हो गया है। बाप ने अच्छा खाना छोड़ दिया है, अच्छा पहनना छोड़ दिया है, वजह क्या है? अब उसके सर पर एक टेंशन है, इसकी शादी करनी है। वो जानता है अपनी बच्ची के लिए एक लड़का तलाश करने के लिए मुझे कई लाख की जरूरत है, मुझे अच्छे खाने का इंतजाम चाहिए, मुझे गाड़ी का इंतजाम करना चाहिए। यारो जरा कभी गौर किया करो, वो बाप अपनी बेटी को, ऐसी बेटी को दे रहा है जिसने 18 साल तक अपने सीने से लगाया, अपने सीने से कभी जुदा ना किया। वो बाप तुम्हें तुम्हारे बेटे के लिए सारी जिंदगी के लिए दे रहा है, जिसने एक रात के लिए अपने रिश्तेदार के इधर न छोड़ा, मगर आज तुमने क्या किया? लंबी डिमांड करते हो, भिखारियों की तरह भीख मांगते हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी यही औकात है, बेटी की तुम्हें जरूरत है, गाड़ी की तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी यही औकात है तो खुद से खरीद लो, खुद से पता चलेगा। और फिर कहता हूँ अगर मांगना है तो इनसे ना मांग। तुझे बताओ, चला जा गरीब नवाज सरकार की बारगाह में, चला जा गौसे पाक की बारगाह में और आगे बढ़ के चला जा मुस्तफा की बारगाह से मांग। कसम खुदा के वो मुस्तफा तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई माशाअल्लाह, बहुत। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यारो जरा मुआशरे को देखो, संभालो अपने मुआशरे को देखो, बंदा बहुत जुल्म सितम करता है। आज हर किसी ने अपनी शादी में शरीयत को छोड़ करके बंदा तबीयत पर ध्यान देता है, शरीयत को भूल चुका है, तबीयत से काम लेता है। और फिर शादी के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब बंदे की शादी हो जाती है रब रिस्क ज्यादा कर देता है। मगर आज अक्सर देखा जाता है कि जब शादी हो जाती है तो बंदा परेशान रहता है, पूरा घर परेशान रहता है। वजह क्या है? फिर जब वही लड़की आकर के जब तुम अपनी शादी में लोगों को बुला करके, नचनिया को बुला करके नाच नचाओगे तो फिर वही असरात उस पर जा करके घर पहुंचने के बाद वो तुम्हें नाचना, फिर वो तुम्हें नाच नचाएगी। हाँ यारो देखो, और तुम्हें एक बात बता दूं, आज बंदा कैमरे के सामने बोलने में बड़ा हिचकिचाता है, बहुत हिचकिचाता है। अगर इसके सामने कैमरा लगा होना तो अपनी बातें भी, अपनी जबान को भी संभाल के चलाता है। ये तो दुनिया का कैमरा है, ये कैमरा जो शूट करता है सिर्फ यही तक रहेगा, कब्र तक नहीं लेके जाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर 2 कैमरे मुसल्लत किए हैं, एक इस कंधे पर है, एक इस कंधे पर है। याद रखना मेरी बात को, जो फरिश्ते हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, ये कैमरे के शक्ल में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है।
मगर याद रखना यही फरिश्ते आज दुनिया में रह करके तुम्हारे पूरे किरदार की शूटिंग करते हैं। कल बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में ये पूरी पिक्चर चलाई जाएगी। रब की बारगाह में जहां पर तमाम इंसान मौजूद होंगे, तेरा नामे आमाल खोला जाएगा, ये तेरी पिक्चर चलाई जाएगी। तेरे नामे आमाल में हज भी होगा, रोजा भी होगा, ज़कात भी होगी, खैरात भी होगा, लोगों की मदद भी होगी, गरीबों की मदद भी होगी, लोगों की मदद भी होगी, बेओं पर अच्छा सलूक भी होगा। मगर याद रखना जब ये तेरा नामे आमाल खोला जाएगा, फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिर करेंगे। फरिश्ते बताएंगे मौला देख इसका नामे आमाल क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसमें तमाम चीजें पाए जाएंगी, रोजा नमाज हज ज़कात सब मिलेगा। फिर रब फरमाएगा जरा इसके लड़के की शादी का तो दिखा, इसके शादी का तो पन्ना पलट। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये पन्ना पलटा जाएगा फरिश्ते दिखाएंगे, कहेंगे मौला इसने लंबी डिमांड की थी। डिमांड क्या थी? इसने गाड़ी मांगी थी, 4 व्हीलर मांगी थी। लब पूछेगा ये बता ये गाड़ी का इंतजाम कहाँ से हुआ था? तो फरिश्ते कहेंगे मौला किसी ने दुकान बेचा था, किसी ने मकान बेचा था, किसी ने खेत बेचा था, किसी ने खलियान बेचा था। मौला किसी ने अपना जेवर बेचा था, किसी ने जमीन गहन रखी थी, किसी से कर्जा उधार लेकर के फिर इसे गाड़ी दी गई थी। रब फरमाएगा ओ फरिश्ते इसे ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे ओ परवरदिगारे आलम इसके नामे आमाल में नेकियां इतनी ज्यादा है, लेकिन तू जहन्नम में भेजने का फैसला कर रहा है। तो रब फरमाएगा ओ फरिश्तों सुनो, मेरे महबूब का दुनिया में ऐलान था, जो गरीबों को सताएगा, जो गरीबों को परेशान करेगा वो सीधा जहन्नम में जाएगा। और मुस्तफा का ऐलान था जो गरीब की दिलजोई करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो मेरे मुस्तफा के फरमान पर इसने अमल नहीं किया। ओ यारो दुनिया में रह करके मुस्तफा के फरमान पर अमल कर जाओ। कसम खुदा की इधर आदमी मुस्कुराएगा, लड़की का बाप मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ याद रखना यारो, जरा गौर करो। शादी तो होती है, लड़की के हाथ से मेहंदी तो छूट जाती है, मगर अक्सर देखा गया है, आप लोग भी देखते होंगे, समझते होंगे कि बंदा जो शादी करता है ना तो इल्ला माशाअल्लाह जो किसी से कर्ज ना लेता हो, मगर अक्सर ये देखा जाता है कोई या तो कर्ज लेता है या तो कोई अपनी जमीन बेचता है या दुकान बेचता है। और देखो हम अपनी शादी किस तरह से करते, शादी हमारी होनी किस तरह से चाहिए। आओ मुस्तफा की बारगाह से दर्श लेते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा की बारगाह से मौला अली शेरे खुदा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी मौला ताला अन्हु के पास बैठे हुए होते। हजरत अबू बकर हजरत उमर कहते अली तुम्हारी शादी ना करवा दी जाए, अली तुम्हारी शादी ना करवा दी जाए। हजरत अली कहते किससे? तो कहते नबी की बेटी फातिमा से, नबी की बेटी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली है मुस्तफा की बारगाह में जाते, जाने के बाद बैठ जाते। मेरे नबी ने पूछा अली कैसे आना हुआ, अली कैसे आना हुआ? हजरत अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह दिलों की खबर रखने वाले मेरे आका आपको बखूबी पता है। अब मेरे नबी है, देखना मेरी बात सुनना, मेरे नबी है, कहते अली बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हो? जी या रसूल अल्लाह। मेरे नबी है अपनी जगह से उठ करके अपने हुजरे से निकल करके मेरे मुस्तफा अभी बाहर ही आए थे। रब की बारगाह से हजरत जिब्राइल आते हैं, आने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया अपनी बेटी फातिमा से इजाजत लेने के लिए जा रहा हो। हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाजत ना लीजिए, अली का निकाह अली की पसंद को, अली और फातिमा
फातिमा के जोड़े को रब ने मकबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। या रसूल अल्लाह इजाजत ना लीजिए, अब सुनना मेरे मुस्तफा के जुमले को। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिब्राइल ये तो मुझे भी पता है, मगर मैं अपनी बेटी फातिमा से इसलिए इजाजत लेने जा रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत की बेटियों को भी हक मिल जाए कि जब उनकी शादी की जाए तो बाप बेटी से एक मर्तबा पूछ ले, बेटी ये बतला, मैं तेरा जिससे निकाह करने के लिए जा रहा हूँ, ये बता क्या तू भी उसे पसंद करती है? मगर अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा माशरा तो उल्टा हुआ जा रहा है। बाप है बेटे से 10 मर्तबा पूछता है, उसकी फोटो को दिखाता है, अगर बेटे ने इनकार कर दिया तो बाप कहता है, बाप ये कहता है, बेटा परेशान मत हो, तेरे लिए दूसरी बेटी आ जाएगी। दूसरी इनकार कर दी, परेशान मत हो, तीसरी आ जाएगी। मगर वही बाप अगर बेटी का रिश्ता करना हो तो एक मर्तबा उससे नहीं पूछता है, बेटी ये बतला, तेरा दामन जिसके दामन से जोड़ा हो, क्या तू इसमें खुश है कि नहीं खुश है? ये बतला, क्या तू इसमें राजी है कि नहीं राजी? वजह ये है, बंदा बेटे से इसलिए पूछता है कि अगर उसने अभी से ना पूछा तो बाद में वो 2 रोटियां ना देगा। मगर यारो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बेटा आगे चल करके तुम्हें टुकरा देगा, मगर याद रखना बेटियां वो होती है जो हमेशा के लिए अपनी बाप की इज्जत रहा करती है, हमेशा हमेशा अपने बाप की फरमा बरदार रहा करती है। वो बेटियों से पूछो तो वो ये कहती है, मेरा बाप जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मेरे मुस्तफा ने दर्श दिया है, बस 5 मिनट की गुफ्तगू और सुन ले। अब मेरे नबी है सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछते, बेटी ये बतला, तेरा निकाह जिससे किया जा रहा है अली से, ये बतला तू क्या इजाजत दे रही है? हजरत फातिमा ने रो करके कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बात तो माएं पूछा करती हैं। मेरे मुस्तफा की चश्माने नबूवत बरस जाती है, रो करके फरमाते, बेटी ये बता खदीजतुल कुबरा कहाँ से लेकर के आऊं? अल्लाह हज़रत फातिमा जवाब देती, या रसूलल्लाह अगर आप इस रिश्ते पर राजी है तो आपकी बेटी आपकी रजा पर राजी है, आपकी बेटी। अल्लाह अकबर कबीरा। आए देखे हजरत अली का और हजरत फातिमा का निकाह किस तरह से हुआ। मेरे नबी है हजरत अली का निकाह जब होता है ना तो हजरत अबू बकर आते हैं, निकाह भी हुआ है। हजरत अबू बकर आने के बाद कहते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर काम में आपके साथ अबू बकर रहा करता है, हर काम में जो भी काम हो शराकतदार में भी हुआ करता हूँ। मगर या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज आपने अपनी बेटी का अक़्द किया, निकाह किया, अबू बकर को नायाद किया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू बकर ये बतला तू आकर के क्या करता, तेरी क्या सोच थी? हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज मैंने ये सोचा था अगर नबी अजीमुशान है तो उसकी बेटी भी अजीमुशान है, अगर नबी आला है नबी की बेटी आला है। आज अबू बकर ने ये सोचा था आला नबी की आला बेटी की शादी भी आली होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर ये चाहता है आज फातिमा को इस तरह से दहेज दिया जाए, इस तरह से दहेज दिया जाए कि कोई इंसान अपनी बेटी को निकाह में इस तरह का दहेज ना दे सके। मेरे मुस्तफा ने रो करके फरमाया, अबू बकर अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी के पहाड़ चले, अबू बकर अगर मैं चाहूँ तो मैं भी अपनी बेटी को हीरे जवाहरात दे सकता हूँ, कीमती सामान दे सकता हूँ। मगर मुझे उम्मत की बेटी का ख्याल आ जाता है, अगर आज मैंने दहेज दे दिया तो मेरी उम्मत की बेटी दहेज ना पा करके वो तो ये कह सकती है अपने बाप से कि मेरे नबी ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा को अच्छे अच्छे लिबास दिए थे, अच्छे
बच्चे गहने दिए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आप इतना कह ही रहे थे, हजरत फातिमा बोल पड़ती है, या रसूलल्लाह मुझे दहेज चाहिए, या रसूलल्लाह मुझे दहेज चाहिए। मेरे नबी ने हैरत में आकर के कहा, फातिमा तुझे दहेज चाहिए? हजरत फातिमा ने कहा, जी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ मुझे दहेज चाहिए, नबी की बेटी को दहेज चाहिए। जी या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मगर मुझे दहेज में हीरे जवाहरात ना चाहिए, मुझे खेत खलियान नहीं चाहिए, सोने चांदी के मेल नहीं चाहिए। फिर बेटी ये बतला तुझे दहेज में क्या चाहिए? अब सुनना हजरत फातिमा का दहेज क्या है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा कहती है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपकी जुबान से सुना है, आप ही ने फरमाया है कल बरोज़े क़यामत होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तमाम लोग इकट्ठा होंगे, अव्वलीन आखिरीन सब मौजूद होंगे वहां पर। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमा कहती है, बाबा जान आपकी ज़बान से मैंने सुना है कि आप रब की बारगाह में मैदाने महशर में हाथ उठा करके दुआ करेंगे। या रसूल अल्लाह, फातिमा ये चाहती है हाथ उठा करके दुआ आप करें, आपकी दुआ पर मेरा दहेज ये होना चाहिए कि आमीन में कहूँ। इतना कहना था, रब की बारगाह से हजरत जिब्राइल आते हैं, आने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब ये चाहता है, रब ये फरमा रहा है, महबूब घर से बेटियों को काली हाथ नहीं भेजा जाता है, महबूब बेटी से कह दे दुआ करना तेरा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है। गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डालना ये मुझ खुदा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब फातिमा से कह दो दुआ करना तुम्हारा काम, आमीन कहना फातिमा का काम, गुनहगारों को बख्शना ये मुझ मुस्तफा का काम है। यारों अगर इस तरह की शादी होना, कसम खुदा की हमारी पूरी नस्लें परवान चढ़े, पूरी नस्लें, हमारा घर हमेशा शादो आबाद रहे। बस एक लास्ट गुफ्तगू करता हूँ, अगर कोई अपने बेटी का रिश्ता करे ना तो घर में बहू आने के बाद खबरदार, पहली बात तो बेटे को ये चाहिए कि उसे समझाए इस तरह से कि खबरदार मेरे वालिदैन की अजमत को समझना, कभी उनकी शान में बेअदबी ना होने पाए, इस तरह से तू समझा। और फिर ससुर को ये चाहिए कि उस बेटी से जाकर के कहे, बेटी परेशान मत हो, उस पर जुल्म सितम करने के बजाय उससे जाकर के कहे, बेटी परेशान मत हो, तूने एक बाप को छोड़ा है, तो मैं तेरा दूसरा बाप बन करके हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और इसी तरह से तेरी माँ बच्ची से कहेगी ना, तो याद रखना ये रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा और नस्लें परवान चढ़ेंगी। जब इस तरह की खुशी का माहौल घर पे होगा, माहौल बनाना तुम्हारा काम है, रब की रहमत लाना ये मुस्तफा का काम है। याद रखना जब तुम्हारा माहौल इस तरह का बनेगा, माहौल बनाना तुम्हारा काम है। तुम्हारे बीच में आपस में मोहब्बत पैदा करना ये पैदा करने वाले खुदा का काम है। बारगाह मौला में